خط اس کا 6واں باب، غلطیوں کا خط اس کا 6واں باب، اس کی 14ویں آیت خداوند کے مقدس کلام میں سے۔ خدا کا بندہ غلطیوں کا خط لکھتے ہوئے اس آیت میں یوں لکھتا ہے، آئے میرے پیچھے بولیں، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ آمین۔ خدا کا بندہ غلطیوں کے اندر موجود ہو کر گویا روحانی طور پر ان کو ٹیچ کرنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، اور اس کلیسیا میں جہاں بہت ساری چیزیں سر اٹھا رہی تھی، ان میں نمایاں یہ ایک فخر پایا جاتا تھا کہ ہم جو یہودی ہیں، اور یہودی ہونے پر لوگ بڑا فخر کرتے تھے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ فخر تھا کہ ہم یہودیت سے مسیح میں آ گئے، اور مسیحت میں آ کر بھی وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم کسی غیر قوم سے نہیں آئے بلکہ یہودیت سے آئے ہیں، اور ہماری بنیاد، ہماری اصل، ہماری نسل جو ہے وہ یہودیت میں ہے، ہمارے روٹ، ہماری جڑ جو ہے وہ یہودیت میں ہے۔ تو اس بات پر بڑا فخر کیا جاتا تھا۔ پھر ایک اور بڑی بدعت جو وہاں پر پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ختنہ جو ہم کروا رہے ہیں یہودیت میں وہ بڑا خاص ہے، بڑا اہم ہے۔ اور پھر اس کلیسیا کے اندر ایک موقع پر جا کر پطرس رسول نے بھی جو ہے ان کا ساتھ دیا، اور اگرچہ پطرس جو ہے وہ بہت ہی معتبر ہے، تو اس خط کو لکھ کر پالوس نے جو ہے پطرس کی بھی اصلاح کی، اور اس کو بتایا کہ کلیسیاؤں میں اس بات کو فروغ ملنا چاہیے کہ یسوع کی صلیب سب کچھ ہے اور کچھ بھی سب کچھ نہیں ہے۔ آج ہی میں آپ لوگوں کے درمیان آیا ہوں تو اسی غرض سے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ دنیا میں خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا جو مقام ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ دنیا میں پالوس جب موجود تھا تو اس نے بہت ہی خوبصورت باتیں اس آیت میں لکھی ہیں۔ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی انہونی نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میں کیا کروں جی، کسی چیز پر فخر کروں، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں جن پر وہ فخر کر سکتا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی قوم اور قبیلے کے اعتبار سے بھی فخر کر سکتا تھا کہ میں جو ہے یہودی ہوں، اور میں نے یہودیت کے سب سے بڑے استاد گملیل سے تعلیم پائی ہے، اور میں شریعت کا بڑا پابند تھا اور اب بھی ہوں۔ اس بات پر فخر کر سکتا تھا۔ وہ اس بات پر بھی فخر کر سکتا تھا کہ مسیح مجھ سے روبرو ملا ہے۔ وہ اس بات پر بھی فخر کر سکتا تھا کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ وہ اپنی رومی شہریت پر بھی فخر کر سکتا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے تھیں، لیکن وہ اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر کیا کروں جی، فخر کروں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس بات پر غور کریں کہ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، بہت ساری ایسی حالتیں ہو سکتی ہیں کہ جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس بات پر فخر کرتے ہو کہ میرا خاندان بہت اچھا ہے۔ بعض لوگ اپنی برادریوں پر بڑا فخر کرتے ہیں، جیسے وہ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے بعض لوگ ہیں پڑھ لکھ زیادہ جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ میں قابل فخر سمجھتے ہیں کہ جی میں دوسروں سے الگ ہوں۔ کئی لوگ ہیں ان کا رہن سہن، پہناوا بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اس پر بڑا، میں ٹائی لائی ہے دوجہ نہیں لائی، میرے بوٹ نہ میں نے دوجہ نے نہیں ہے، میری پینٹ اچھی ہے۔ تو اس بات پر بھی کئی لوگ بڑے بڑے فخر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں مسیحت میں اگر ہمارا کوئی فخر ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ اور یہ روزوں کے ایام ہمیں صلیب کی طرف کھینچ کر لے کر جاتے ہیں، اور پھر اس نے بڑی زبردست بات کی، کہتا ہے کہ صلیب وہ ہے کہ جس سے دنیا میرے اعتبار سے کیا ہو گئی ہے، مصلوب ہو گئی، اور نہ صرف وہ مصلوب ہوگی بلکہ میں بھی
दुनिया की तरफ से क्या हो गया हूँ, मसलूब हो गया। तो गोया वो कहना ये चाहता है मैं दुनिया वालों मरिया तो दुनिया मेरे वालों मर गई, मैं अपनी जगह पर हूँ। अब मेरे सामने कोई शख्स भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, कोई कौम नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई भी नस्ल नहीं है, कोई बरादरी नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई इलाका नहीं है। दुनिया मेरे एतबार से क्या हुई है, मर गई है, और मैं दुनिया के एतबार से क्या हूँ, मर गया हूँ, मसलूब। और मैं समझता हूँ कि मसीहत में ये मसीहत का हीरो पौलुस रसूल अगर ये ऐसा समझता है तो हर मसीही को भी ऐसा ही समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम मसलूब होंगे, और याद रखें जब हम उसके साथ मसलूब होते हैं तभी उसके साथ दफन होते हैं, तभी इस लायक बनते हैं कि जैसे वो जी उठा उस तरह से हम भी क्या हो जी उठे। तो जो उसके साथ मरता नहीं है वो उसके साथ दफन भी नहीं होता, जो उसके साथ दफन नहीं होता वो उसके साथ जिंदा भी नहीं हो पाता। इसलिए इन हालतों में जाने के लिए, जिंदगी की राह पर बढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है कि हर मसीह समझे कि मैं मसीह के साथ क्या हूँ, मसलूब हूँ। और पौलुस ने एक दूसरे मौके पर कहा था अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है जी। तो पौलुस की यह ख्वाहिश थी कि मसीहत के अंदर सलीब को, सलीब के पैगाम को, सलीब की तालीम को और सलीब के उस काम को जो यीशु मसीह ने सलीब पर किया है उसको फरोग में। और हमने मसीही होते हुए क्या किया है, इसको बड़ा महदूद कर दिया। सिर्फ जब रोजे आते हैं रात के बुध से लेके गुड फ्राइडे तक हम सलीब के गीत गाते हैं, और जो ही संडे आता है हम जी उठने का गीत गा के सलीब को भूल जाते हैं। या फिर दुनिया के अंदर सलीब को लोगों ने क्या किया है, तरह बतरह से अपने इस्तेमाल में ले लिया। बाजों ने क्या किया, अपनी अंगूठियों के अंदर सलीब को ले लिया। बाजों ने जो है वो अपने गले में सलीब को लटकाना पसंद कर लिया। बाजों ने अपनी डोरियों पर और अपने कपड़ों पर सलीब बनवाना पसंद कर लिया। लेकिन मैं ये कहूँगा अगरचे ये भी किसी न किसी जगह पर हमारे लिए गवाही है कि हम बता सकते हैं हम मसीही हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर ये है कि हम ये कहें, ये इकरार रखें कि अब मैं जिंदा रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है जी। क्योंकि दिखावे से बढ़कर क्या है, हमारी जिंदगी मसीह के साथ मसलूब होनी चाहिए। किसी ने कहा, उसने स्टोरी सुनाई और मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं यूरोप के एक मुल्क में गया और मैं नया नया था, तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई चर्च मिले, संडे का दिन है तो मैं चर्च जाऊँ। तो कहते करते करते एक नौजवान पर मेरी नज़र पड़ी और उसने काफ़ी सारी सलीबें जो थी, कानों में भी पहनी है, गले में भी पहनी है और हाथ पर भी अंगूठी में पहनी हुई है, काफ़ी सारी सलीबें जो है पहनी। और मैंने कहा ये बच्चा जो है ना ये वाकई मसीही है और इससे मुझे पता चलेगा कि चर्च कहाँ है। उसने उस नौजवान को इशारा किया और कहा, नौजवान आप मसीह हैं? कहता है हाँ जी मैं मसीही हूँ। कहते मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से चर्च जाते हैं? उसने कहा कौन से चर्च से क्या मुराद है, मैं किसी चर्च नहीं जाता। उस शख्स ने उससे सवाल किया, उसने कहा अगर तू चर्च नहीं जाता तो इतनी सारी सलीबें क्यों पहनी है? उसने कहा ये सलीब चर्च जाने के लिए नहीं बल्कि ये सलीब तो मेरा फैशन है। सलीब क्या है? मेरा फैशन है। तो नौजवान हो, चाहे यूरोप के हो, चाहे मशरक के हो, किसी भी खित्ते के हो, बाजों ने इस 21वीं सदी के अंदर सलीब को बतौर फैशन ले लिया। और मैं आपका ध्यान चाहूँगा, आए हम यीशु मसीह की बात पर जाएं। मत्ती की इंजील 10वां बाब उसकी 38वीं आयत, आप में से कोई पढ़े? वर्ष। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले तो मेरे लायक नहीं। आमीन। क्या सुना जी आपने? और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। ये यीशु मसीह का फरमान है। और यीशु मसीह ने जब ये कहा तो उसकी ख्वाहिश थी कि हर शख्स जो उसके पीछे आने वाला है, जो उसकी पैरवी करने वाला है, वो अपनी क्या उठाए जी? सलीब उठाए। अपनी सलीब उठाना बड़ा जरूरी है। सब बोले अपनी सलीब उठाना बड़ा जरूरी है।
और मेरे पीछे न चले तो मेरे लायक नहीं। तो जो उसके लायक नहीं होगा वो उसकी बादशाही का हिस्सा भी कभी बन नहीं सकता। उसके लायक बनने के लिए हर मसीही को, चाहे उसका टाइटल कुछ भी है, चाहे कोई बिशप है, चाहे कोई पादरी है, चाहे कोई एल्डर है, चाहे कोई डीकन है, या अपने आप को मुबशर कहता है, या अपने आप को उस्ताद कहता है, अपने आप को रसूल कहता है, अपने आप को नबी कहता है, कुछ भी उसका टाइटल है या आम ईमानदार है, उसको अपनी सलीब उठानी होगी। क्या करनी होगी? सलीब उठानी होगी। चाहे औरत है, चाहे मर्द है, सबको अपनी सलीब उठानी। खाली गीत नहीं गाने होंगे, सलीब के गीत काफी नहीं है, अगरचे गाने भी चाहिए। हमारे पास नौजवान बच्चे हैं, बड़ा अच्छा गाते बजाते हैं। इन नौजवानों के लिए खुदा का शुक्र, मैं चाहूंगा इनके लिए तालियां बजाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी जरूरी है कि हम अपनी अपनी क्या उठाएं जी? सलीब। अपनी सलीब उठाने के लिए फिर हमें नमूना लेना होगा कि बाइबल में लोगों ने जब सलीब उठाने की बात की या सलीब उठाई तो कैसे उठाई। इससे पहले कि मसीह सलीब उठाता, उसकी बाबत यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना रसूल जो है, जो उसकी राह तैयार करने वाला था, उसने ऐलान किया, लिखा है, उसने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। और जब उसने उठाया तो नजर नहीं आता कि उसने किसी का गुनाह उठाया, नजर नहीं आता कि यशायाह की पेशन गोई उस तरह से वाज़ेह तौर पर दिखाई दे कि उसने हमारी मशक्कतें उठाई हैं, हमारे बोझ उठाए हैं, हमारी कमजोरियां उठाई हैं। जब उठाई तो उसने सलीब उठाई। आमीन। तो गोया बाइबल के अंदर जो सलीब है वो क्या है? जो मसीह ने उठाई वो दर हकीकत लोगों की कमजोरियां थी, लोगों की बीमारियां थी, लोगों की मशक्कतें थी, लोगों के दुख थे, लोगों के गम थे, जितनी चीजें भी लोगों के ऊपर बोझ थी, वो सारा बोझ मसीह ने सलीब को उठाकर अपने ऊपर उठा लिया। तो मसीह की सलीब क्या थी जी? हमारे गुनाह, हमारे दुख, हमारी मशक्कतें, हमारी मुसीबतें। अगर कोई आपसे पूछे मसीह की सलीब क्या थी तो आप क्या बताएंगे? लकड़ी की थी। शुरू में क्या हुआ, लोग इसी बात में फंस कर रह गए, सलीब कैसी थी जी। बादों ने कहा सलीब जो है ऐसे थी, बादों ने कहा नहीं ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। बादों ने कहा नहीं एक डंडा लंबा सी, फिर ऐसे थी। तरह से इसी बात पर बहस होती रही। लेकिन बाइबल ये कह रही है कि सलीब दर हकीकत वो निशान थी, लेकिन उसके पीछे क्या था? हमारी मशक्कतें, हमारे बोझ, हमारे गम, हमारे दुख, हमारी परेशानियां, जिनको आज हम फील करते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ईमान लाना होगा। जब कभी आप बीमार हो, कमजोर हो, तो इस वक्त भी अगर कोई बीमार है, कमजोर है, उसको अपनी बीमारी को, अपनी कमजोरी को यीशु की सूली पर देखना होगा। हालेलुया। उस पर देखेंगे तो आप पर से खत्म। लेकिन अगर आप अपने ऊपर ही देखते रहेंगे तो फिर मसीह की सलीब से आपको कोई फायदा नहीं। तो सलीब मसीह ने उठाई और उठाकर नमूना दे दिया। और सिर्फ उसने 10वें बाब की 38वीं आयत में कहा नहीं, मत्ती की इंजील में सिर्फ कहा नहीं, बल्कि सलीब उठाई और उठाकर दिखाई। फिर जब उठाई तो क्या किया जी? उसने रास्ते में रखी? हेलो, रखी? नहीं रखी। हालांकि रवायत ये बताती है कि वो गम से नढहाल उन सारे दुखों का बोझ झेलते हुए और यहां तक कि कांटों का ताज सर पर पहने हुए, अपनी कमर पर कोड़ों के जख्म लिए हुए, वो कलवरी की राह पर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और तारीख ये बताती है, रवायत ये बताती है कि रास्ते में 3 बार गिरा, मगर फिर भी सलीब उसने रखी नहीं थी। और मैं आपसे ये कहूंगा, जब आप सलीब उठाओ तो कितनी बार गिरना होगा, लेकिन आपको ये लाजिम है कि सलीब छोड़नी नहीं। आज दुनिया में आप घरों के हालात देख लें, होता क्या है? बहुत सारे घराने
दीवाने ऐसे हैं, 99% ऐसे हैं कि जो अपने दुखों में भी क्या करते हैं, अपना घर नहीं छोड़ते, उसी में जिंदगी गुजारते हैं, गमों में, दुखों में, परेशानियों में, गरीबियों में, अपने घर में ही रहते हैं। लेकिन कई बार होता है दुनिया में 1% ऐसे लोग हैं जो सर उठाते हैं, नहीं मैंने यहां नहीं रहना। बीवी हो वो कहते हैं नहीं मेरा गुजारा ही नहीं है इस घर से, और मैंने बस खला चाहिए, तलाक चाहिए, और फिर कोर्ट कचहरियां बड़े बड़े हैं इन मामला से। अगर वो बीवी घर के अंदर अपनी सलीब उठाने वाली बन जाए तो कोई तलाक नहीं हो सकती। बच्चों को छोड़कर ये नहीं कहेगा मुझे हालात देखे नहीं जाते और मैं खुदकशी करना, नहीं। मैं कहूंगा दुनिया की सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं अगर लोग अपनी अपनी सूली उठाना सीखें। उसने रखी नहीं और वो मंजिल तक गया, और वहां पर जाकर भी क्या करता है, वो गिला करता है, रास्ते में को गिला करता है। हालांकि औरतें हमदर्दी कर रही हैं उससे, क्या यीशु हमसे तेरा गम देखा नहीं जाता, हम तेरे लिए क्या करती हैं, रोती हैं। लेकिन उसने क्या कहा, मेरे लिए ना रो। और हम तो जब सलीब उठाकर जा रहे होते हैं दुखों में से गुजर, कोई आके ऐसा ना बंदा आ जाए कि सानू तो रोना होंदा तेरे हालात लेके, हम चाहते हैं ये बंदा जाए ही ना साडे घरों। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा मुझ पर ना रो, अपनी सलीब उठाओ, अपने ऊपर रो, मुझ पर नहीं बल्कि अपनी नस्ल पर, अपनी औलाद पर मातम करो। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ ऐसा क्यों ना किया। और वो सूली वाला सूली लेकर गया और दुर्गता के मुकाम पर जाकर क्या करता है, लोग उसको लान तान कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है लोग कहते हैं ना, अच्छा सजा पांड्या ना ये है ही इंजरा, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो लान तान कर रहे हैं, राह वाले भी, पास खड़े लोग भी, पहरेदार भी, सूबेदार भी, यहां तक कि उसके दाएं बाएं जो डाकू थे बाद में एक पहचान लेता है और कहता है यीशु जब तो अपनी बादशाही में आया तो मुझे भी क्या करना। लेकिन शुरू में वो भी लान तान करता है। यीशु ने क्या किया, सलीब पर चढ़ते ही क्या कहा, बाप इनको और मैं ये कहूंगा कि जिनकी वजह से हमारे सलीब के दुख बढ़ते जाते हैं, हमारी जिंदगी के दुख बढ़ते जाते हैं, उनके लिए ऐसी दुआ मांगने की क्या है, ये दुआया तहरीक है। इस दुआया तहरीक में मैं शुक्रगुजारी करता हूँ एक बार फिर इस चर्च के लिए, आपके खादम के लिए, कि दुआ में वो दुआ कोई दुआ नहीं जिसमें हम किसी को माफ ना करें। यानी तरीके नंद कर ते जिन्हों सा माफ नहीं करना उन्होंने फिर नहीं करना जी, बस तरीके दिन दुआ भी कर रहे हैं लेकिन वो बंदा नहीं, वो लिए दुआ नहीं होगी। ये कैसी दुआ है, ये फिर कैसी दुआया तहरीक है जिसमें हम अपने सताने वालों के लिए दुआ नहीं करते। उसने सलीब पर चढ़कर पहली दुआ ये मांगी, क्या बाप इनको क्या कर जी, माफ कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या। उसने बड़े, मैं फिर कहूंगा, अपनी सूली को और सूली के सफर को बड़ी ही साबित कदमी के साथ तय किया। और वो चाहता है कि हम भी जब सलीब उठाएं, शुरू करना आसान है। हो सकता है आज के मैसेज के बाद आपके मैं अपनी सलीब उठाऊंगा, शुरू करना बड़ा आसान है। कोई भी काम है उसको उसका आगाज बड़ा जोश और खरोश के साथ होता है, लेकिन इख्तिताम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और हमारी कौम इसीलिए पसमानदगी का शिकार है कि दुआ भी शुरू कर लेते हैं लेकिन फिर जिंदगी कई बार छड़ भी देते, रोजे रखते हैं फिर छड़ भी देना। हम तो ऐसे हैं, इन्हें 40 ऐसे फंस गए, सारा साल फिर बाद में रखते ही नहीं। और बाद ऐसे भी हैं जो इन 40 का इनकार करके क्या करते हैं, एक भी नहीं रखते तो बाकी में नहीं रखते। मैं कहता हूँ इन 40 में अगर रख लोगे तो गुनाह हो जाएगा, क्यों जी, वो बुराई है। लेकिन हम तो बहस मुबासों में फंसे रहते हैं। तो सलीब को रास्ते में रखना नहीं है, अपनी सलीब क्या करनी है जी, उठानी है। नंबर 2, दूसरी बात सुने गौर से, जब वो सलीब उठाकर जा रहा था तो चूंकि कमजोर था, बार बार गिर रहा था, तो सिपाहियों ने सोचा कि इससे अपना सूली नहीं उठाई जाती। तो रास्ते में एक शख्स शमौन करीनी आया और लिखा है उसको बेगार में पकड़ा, गोया उसको कहा भाई हम तुझे कुछ पैसे देंगे तो इसकी सलीब उठा। उसने थोड़ी देर के लिए उठाई
इससे हम क्या सीखते हैं? इससे ये है कि अपनी भी चुकनी है ते दूजियां दी भी, अपनी भी ते दूजियां दी भी। लेकिन साडे को तो अपनी नहीं संभाली जाती है, सब दूजियां दी की चुकनी है। और आज का ईमानदार ऐसा खुदगर्ज है कि पहले नंबर ते तो बाहर है ना, सलीब ही नहीं चुकता, तो जे चुक लेंदा तो फिर अपनी भी संभाल के रखता है, अपनी नहीं, हर बात में अपना नफा देखता है, हर बात में अपना फायदा सोचता है। और यहां तक कि ईमानदार की दुआ अपने से शुरू होती है और घूम फिर के फिर अपने पे आ जाती है, अपने ऊपर। जहां मैं ये कहूंगा कि जैसे शमौन करीमी ने दूसरों की यसु की सूली उठाई थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा टाइम कटना होगा, किसी दूसरे की सलीब चुकनी है। आमीन। यसु ने जो सलीब उठाई थी वो अपनी नहीं थी, वो भी हमारी थी ना, बल्कि सारे जहान की, उन्हें सारे जहान ने चुक ली। और इस दुआया तहरीक के अंदर, जहां तक मेरा नॉलेज है, इस दुआया तहरीक के अंदर मुल्कों का बोझ लिया गया है। किनका जी? तो जे तुसी अपने गवांडी की दुआ नहीं कर सकते, अपने पड़ोसी के लिए दुआ नहीं कर सकते, तो पड़ोसी मुल्क लिए कैसे करांगे जी? अगर हम इंडिया के लिए दुआ नहीं करते तो नेपाल के लिए कैसे करेंगे? अगर हम नेपाल के लिए नहीं करते, बांग्लादेश के लिए कैसे करेंगे? अगर हम बांग्लादेश के लिए नहीं करते, ईरान, रूस, चाइना, अफगानिस्तान, ये सारे मुल्क कैसे हमारे सामने आएंगे कि हमने दुआ करनी है? और हम सलीब उठा सकते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। तरीका क्या है कि जब दुआ में झुके तो दूसरों को भी याद करें। आमीन। जब उठाकर सलीब चल रहे हैं तो फिर हमें दूसरों की उठानी है, बोझ उठाने हैं। तो देखें, आपका भाई मर रहा है, किस बोझ के नीचे दबा है? और मैं ये कहता हूँ, अब्राहम की बात की खुदा के खादम ने, उसने ईमान की बोली बोली। मुझे बड़ा, मेरी ये फेवरेट स्टोरी है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके बारे में बताना कि उसने ईमान की बोली बोली। काश के हर ईमानदार ईमान की बोली बोले। और वो दुआ नहीं हो सकती जिसमें हम ईमान की बोली ना बोले। ईमान से जब कहेंगे तो फिर ईमान लाए कि हो जाएगा। और हमारा खुदा तो वो है कि जहां कुछ नहीं हो सकता वहां भी बहुत कुछ पैदा करता है। तो सानू मुंह मिला दिया कुछ हो सकता है। हमें वक्त निकालना होगा, दूसरों का बोझ बांटना होगा, दूसरों के लिए दुआ मांगनी होगी। और बाइबल में मैं नमूना दे सकता हूँ कि ना सिर्फ यीशु मसीह ने सलीब उठाई, बल्कि आज भी बाप के दाहिने हाथ बैठकर वो हमारी क्या करता है? क्या करता है जी? शफायत करता है। वो आज भी बाप के दाहिने हाथ बैठकर मेरे लिए बोलता है, आपके लिए बोलता है। आज भी वो कह रहा है, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज भी शिफायत करता है। फिर दूसरा, रूहुल कुद्दस, रोमियो के खत में लिखा है 8वें बाब के अंदर कि वो मुकद्दसों की शिफायत करता है। हम तो जानते ही नहीं दुआ कैसे की जाए, रूह खुद क्या करता है? आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। तो रूह शिफायत करता है, यीशु शिफायत करता है, तो ईमानदार को भी क्या करना होगा? शिफायत करना, दुआ मांगनी होगी। और आज से मैं ये कहूंगा, और ज्यादा इस तहरीक को आप फरोग दें, और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि दूसरों के बोझ कम होते चले जाएं। फिर नंबर 2, दूसरी हालत ये है कि हम दूसरों के बोझ को बांट सकते हैं। कैसे? सुनिएगा गौर से। दूसरों के बोझ को हम बांट सकते हैं जो लोग नहीं जानते, उनको तालीम देके, उनको बता के। आपको अच्छा सीखना होगा, और फिर जो अच्छा सीखता है वो अच्छा ही सिखा सकता है, लेकिन जो अच्छा सीखता नहीं है वो सिखा भी नहीं सकता। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आपके खादम को ये भी बोझ दिया है कि आप तालीमी तौर पर क्या हो जी? मजबूत। और आज मेरे आने का यहाँ मकसद यही है कि जो तालीमी सिलसिला चल रहा है उसमें खुदा ने हमें ये रोया दी कि हम ऐसे लोगों का साथ दे सकें जो वाकई चाहते हैं कि उनकी कलीसियाएं तालीम याफ्ता हों। तो इस सिलसिला में हमने रोया के तहत 2019 में हार्वेस्ट विजन सेंटर का
जो है वो इनकाद किया। इस्लामाबाद में हमने उसका इनकाद किया, जिसमें दूसरों के साथ उस रोया को शेयर किया गया, और खुदा ने अच्छे दोस्त उसमें शामिल कर दिए, जिनमें पादरी नदीम कैसर साहब हैं, पादरी जबूर भट्टी साहब हैं, पादरी आरफ हैं, आपके खादम पास्टर मुनव्वर हैं, और दीगर खादमीन हैं। तो उस रोया का पार्ट है हम तालीमी सिलसिले का, और उसी सिलसिले में आपके इस चर्च में हार्वेस्ट विजन सेंटर की क्लास पिछले दिनों होती रही, जिसमें ब्रदर सॉन्ग और मिसिस सॉन्ग जो है आकर पढ़ाते रहे। तो उस सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ कि आप जहाँ दुआ कर रहे हैं, वहाँ तालीम के बोझ में भी आप दूसरों का बोझ बांट सकते हैं। दुआ कैसे? शफायत करके, लेकिन तालीम सीखें। कोई एक घंटा आप निकालें कि अपने चर्च के स्केड्यूल के मुताबिक तालीमी सिलसिले में आप जरूर शामिल हों, और जब आप सीखेंगे तो फिर दूसरों को सिखाने के, और जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं ना, बदल जाएं। अफगानिस्तान बदल जाए, ईरान बदल जाए, नेपाल बदल जाए, बांग्लादेश बदल जाए, इंडिया बदल जाए, बल्कि पूरी दुनिया जो इस बुक के अंदर है, गालिबन यही है बुक, यही है जी। ये बुक में जो जितने भी ममालिक हैं, ये सब बदल जाए। तो यहाँ पर बदलने के लिए दुआ के साथ साथ हमें ऐसे ईमानदार चाहिए जो जाकर क्या करें जी, उनको तालीम दे सके, खुशखबरी की मनादी कर सके, क्योंकि खुदावन की ये विजन है। उसने कहा कि जब तक पूरी दुनिया में खुशखबरी की मनादी ना हो जाए, खात्मा नहीं होगा। तो अगर हम आसमान की बादशाह में जाना चाहते हैं, तो हर ईमानदार को, बल्कि दुनिया के हर शख्स को हमने अंजील पहुंचानी है। उस सिलसिले में क्या है, एक तो हम तालीम देकर दूसरों को बदल सकते हैं, उनके बोझ कम कर सकते हैं, उनको गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जा सकते, तो जो जा रहे हैं फिर वापस आएंगे, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। हमें उनके लिए दुआ करें कि लोग ऐसे इलाकों में जाएं और जाकर इंजील की मनादी दलेरी से करें, बोल्ड मनादी हो, दलेरी के साथ मनादी हो। और याद रखें, खुदा दलेरों का साथ देता है, बुज़दिलों का साथ नहीं। सलीब उठाने वाले भी दलेर ही होते हैं, बुज़दिल कोई भी सलीब नहीं उठाता, वो तो छुप के बैठ जाते हैं। जैसे सारे शिगिर्द भाग गए थे, यीशु ने सूली उठाई। आमीन। अगरचे शिगिर्दों का बाद में नमूना बड़ा जबरदस्त है, बल्कि शिगिर्दों में से एक शिगिर्द की बात हमने की। पौलुस कहता है, मैं खुदा ना करे कि किसी बात पर फख्र करूं सवाए अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब। ये बाद की बात है, लेकिन उस वक्त सब छोड़ कर पाओगे। हो सकता है आप अपनी सूली उठाएं तो आपको सारा ज़माना छोड़कर चला जाए, लेकिन याद रखें, जब आप सूली की राह पर हैं, तो जिसके साथ खुदा है उसका कौन मुखालिफ हो सकता है? उसके खिलाफ कोई हथियार नहीं काम कर सकता, कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये कहूँगा, अपनी सलीब उठाने में अपना किरदार अदा कीजिए। फिर इसके साथ साथ अगर आप माली तौर पर इन दोनों तहरीकों में, दुआया तहरीक में और तालीमी तहरीक में, आप माली तौर पर मदद कर सकते हैं, तो दिल खोल कर अपने हदिया जात आप दिया करें, ताकि खुदा का काम और बढ़ सके। अभी मैं परसों की बात कर रहा हूँ, मैंने कॉल की, पादी साहब नारोवाल थे, तो नारोवाल को फ्री जाया जाता है जी? क्यों जी? जाने के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, फिर जो टीम है उसके रास्ते का खाने पीने का इंतजाम चाहिए। इसी तरह से तालीमी सिलसिले में भी जब कोई आपके पास आकर आपको पढ़ाता है, तो फिर उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट चाहिए, ताकि वो खुशी के साथ तालीम दे सके। तो खुदा के काम में आप पैसे से मदद कर सकते हैं, और अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आप अपने पादी साहब को बताएं, हम आपको यूज़ करेंगे कि कहाँ पर आप जाकर तालीम दे सकते हैं। और याद रखें, खुदा के खेत में कमी नहीं है कि कोई आकर कहे कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बता कि नहीं कोई वैकेंसी नहीं। याद रखें, दुनिया के सारे बिजनेस कहते हैं नो वैकेंसी, लेकिन खिदमत, खुदा की खिदमत ऐसा शोबा है कि इसमें नो वैकेंसी का बोर्ड सब आए, तैयार हो और सब जाएं और इंजील की क्या करें जी, मदद करें, ताकि दुनिया बदल जाए। और दुनिया में जब जाएंगे, अगर मसलूब नहीं ना होंगे, हेलो, अगर मसलूब नहीं होंगे तो फिर दुनिया हमारे साथ नहीं आएगी, लेकिन अगर मसलूब होंगे तो दुनिया खुद ब खुद हमारे साथ चली।
आखिरी बात करूंगा, शरीयत में काहिनों को लिबास पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है? लिबास, खास लिबास। आज भी आप देखें बाज़ कलीसियाओं में लोग कौन पहनते हैं और ये पहचान होती है, ये पादरी साहब है, ये फादर साहब है, ये बिशप साहब है, कुछ पहचान होती है। शरीयत के अंदर पुराने वक्तों में ये था, जो काहिन का लिबास होता था, उस लिबास के ऊपर जो है ऐसा डिज़ाइन होता था, पंजाबी चाखों में डब्बे बने होते थे, लेकिन अगर गौर से देखें तो वो होता था कि सलीब दर सलीब होता था। पुराने काहिनों के लिबास में सलीब का निशान एक अक्स के तौर पर पेश कर दिया गया, और वो ये जाहिर करता था कि ये काहिन है और ये मसलूब है, दुनिया इसकी तरफ से मरी हुई है और ये दुनिया की तरफ से मरा हुआ है। और अगर कोई ऐसा होता जो इस हालत में ना होता, मौन तो पहन लेता, रस्सा भी पहन लेता और अंदर पाक तरीन मुकाम में जाता, तो क्या होता? उसका गुनाह देखकर खुदा उसे वहीं हलाल करता। ते बार वाले की जरूरत नहीं होती कि अंदर जाके लाश ही चुक लें। वो रस्सा किस लिए था? वो रस्से नाल खींच लेना फिर उस लाश को। खुदा ना करे कि हम इस दुनिया में ऐसे हलाक हो जाए, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने सरों को झुकाएंगे।